हमको स्टार्ट ही ऐसा करवाया जाता है कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। एंड दैट सही और गलत दुनिया में देखते देखते कब हम अपने हर एक्शन को इतना इवैल्यूएट करने लग जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। आप खुद को लेबल करने लग जाते हो कि आई एम एन इनसिक्योर पर्सन, आई एम अ जेलस पर्सन, आई एम एन एंग्री पर्सन. फाइन, ओके, दैट कुड बी योर ट्रूथ फॉर नाउ, बट व्हाट कैन यू डू अबाउट इट एंड व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम देयर? क्योंकि वहाँ पे अगर हम उसमें रिफ्लेक्शन ऐड कर दें, थोड़ा सा हम उसमें वापस रील बैक करके देखें आ कहाँ से रहा है, तो इतनी सारी मैसिव लर्निंग वहाँ पे हो सकती है. I believe Indian parents can agree for anything and everything if you're making good money out of it. True. Any parent, I think. It's easier to convince them, है ना, क्योंकि पैसा जरूरी है. And it's not even wrong because the background that they come from, the time that they come from, उस टाइम पे उन्हें अपना एक एक पल जोड़कर बहुत पैसा कमाना पड़ा था to give a stable life. So they have seen money changing the way they live or they feel about life. जब तक उस कंपनी का रीज़न या फिर मेरा उस कंपनी के लिए काम करने का रीज़न ये था कि मैं अपने घर से दूर भाग रही हूँ, तो मैं कभी उधर सेटिस्फाइड फील ही नहीं कर पाती, क्योंकि आप भाग भाग के भी अपने खुद के घर से दूर नहीं भाग सकते. Hi, welcome to the Journey Within podcast with me, Shobha Rana. This is a podcast where we steer conversations about your inner journeys, emotional health, mental well-being, and the things that really matter. The conversations, the experiences that we feel in the inner world and how they then show up for us in our life that we lead in the outer world. These are difficult conversations, but these are also the conversations that are much needed, much required, and are extremely important for us to delve into to understand our own inner world and also the humanity on a larger scale. Today, I have a very interesting guest with me. She is all of 22 years old, is a serial entrepreneur, I should start with that, but she identifies herself as a storyteller. बहुत सारी जगहों पर जाकर इन्होंने अपनी story सुनाई है. She has created a huge impact with her stories across social media, across audiences that she performs with. And I had the good fortune of listening to one of her stories very recently at an event, and she was absolutely mind-blowing. Please welcome on my show, Vanika. This is so kind of you. इतना अच्छे से मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया, बड़ा मजा आया मुझे सुन के. Vanika, let's start with your beautiful journey. You are from Jaipur, not a small city, I would say anymore. But growing up, how was it in Jaipur, and what are the things that you sort of had to fight? And I'm saying fight because you come from a family which is traditional in a certain way. You come from a city which is traditional in a certain way, and you are somebody who makes a lot of unconventional choices. जो choices शायद दूसरे लोगों को समझ में नहीं आती है, शायद जिसके लिए आपको एक छोटी या कभी कभी बड़ी जंग भी लड़नी पड़ती है. So tell me about how growing up was for you. So my childhood was beautiful, but बोलते हैं ना कि a lot of people ask me कि मैं इतनी जल्दी mature कैसे हो गई. तो I recently heard someone say that I got mature because of the right pinch of childhood trauma. So वैसे ऐसे शिकायत नहीं है कुछ करने को. Of course, I grew up in a family who gave me everything that I needed, everything that I wanted, and my parents were very supportive. Things were great in our family, but छोटी छोटी चीज़ें होती है ना जो हम बचपन में देखते हैं, जो हमारे पेरेंट्स को या फिर हमारे आसपास वाले लोगों को लगता है कि हमने देखी नहीं या फिर बच्चा भूल जाएगा, वो ना कहीं हमारे अंदर रह जाती हैं और वो हमें भी नहीं पता होता कि किस तरीके से हमें इन्फ्लुएंस कर रही हैं, लेकिन वो होती हैं वो छोटी छोटी चीज़ें. अगर और पता है, आई फील कि परफेक्ट पेरेंटिंग जैसा कुछ होता ही नहीं है. तो आई कांट इवन ब्लेम माई पेरेंट्स फॉर द लिटिल थिंग्स दैट आई फेल्ट ऑन द इनसाइड एज अ चाइल्ड, because I felt it, and now it has shaped me into the person that I am now and I was back then. So हाँ, वो छोटी चीज़ें थी कि किस तरीके से उन्होंने मुझसे बात की, किस तरीके से बोला गया, किस तरीके से वो आपस में बात कर रहे थे, किस तरीके से दादी ने मम्मी को समझाया. तो वो एक एप्पल से लेकर एक बहुत बड़ी स्कूल बैग का जो रिलेशनशिप था, मतलब कि कब मिला कब नहीं मिला, वो सारी चीज़ों ने शेप्ड मी एज अ पर्सन. एंड आई डिस्कवर्ड इट रिसेंटली कि मेरे चाइल्डहुड का इतना बड़ा इम्पैक्ट रहा है मेरे ऊपर, दैट आई एम स्ट्रगलिंग, आई एम डीलिंग विद एवरीथिंग इन माई करंट लाइफ.
and I'm working on it. So that, however, as a kid, I was a total attention seeker. मुझे बहुत मजा आता था स्टेज पे, एंड इट स्टार्टेड विद व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ग्रेड. और मुझे सारे बच्चों में से सिलेक्ट किया गया कि शी इज़ गोइंग टू परफॉर्म एट द असेंबली, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड. आई परफॉर्म्ड देयर, और मैंने वहाँ पे गाना गाया, नन्ना मुन्ना लाई हूँ, एंड आई गॉट अपलॉज. आई इवन गॉट अ गोल्ड मेडल फॉर इट. सो आई वाज लाइक, यार मुझे तो सिंगर बनना है, मुझे तो गाना गाना है. So after that, I participated in multiple school competitions, inter-school, intra-school. हर जगह मैं सिर्फ गाना ही गा रही थी, और मुझे लगा मैं तो I'm going to be the Indian Idol. मैं एक ऐसे फैमिली से आती हूँ जहाँ पर speaking up is not that encouraged. क्योंकि ना मम्मी ने कभी बोला खुल के, ना पापा ने कभी खुल के बोला, ना कभी दादी ने खुल के बोला. So I understood, I analyzed from my environment कि बोलना, बताना शायद सही नहीं है, शायद जिंदगी ऐसे ही जी जाती है कि हाँ, ना बताओ, चुप रहो, exactly. छुपा लो, दबा लो और आगे बढ़ो. हाँ. मतलब कि you have to be, हमको कैसे बोला जाता है कि be like that person, she is so nice, she never complains, उसकी तरह बनो. तो मुझे ऐसे लगने लगा कि I have to be likable. मुझे अपनी दादी का ध्यान रखना है ताकि she likes me. इसीलिए बचपन में आई रिमेंबर कार्टून्स अगर चल रहे होते थे और दादी कहती थी नहीं टीवी सीरियल देखना है, तो मैं कहा हाँ ठीक है. मैंने कहानी घर घर की और वो ये सारी चीज़ें बचपन में देखी. इवन दो आई वांटेड टू सी कार्टून्स बिकॉज आई नेवर कंप्लेन्ड. आई बिकेम दैट आइडियल गर्ल जो सबकी बात मान रही है बिकॉज शी वॉन्ट्स टू बी लाइक्ड बाय एवरीवन, बिकॉज शी वॉन्ट्स लव, अटेंशन, केयर फ्रॉम एवरीवन. राइट. एंड व्हेन आई डिड नॉट गेट इट, आई यूज्ड टू do multiple things which were very wrong, and which were very wrong. What are those things that you used to do? So I used to lie. मैंने बहुत झूठ बोला बचपन में. और to your family or to even your friends? Everyone, right? Because you can't be a selective liar. When you have it in you, wherever the situation demands for you to lie, to be likable, or to be whoever you want to be in that moment, you express it. Exactly. And you say it. I have lied a lot, and these lies shaped me as a person. अभी भी मुझे बहुत recently realize हुआ कि चलो मैं झूठ बोल रही हूँ, ये मुझे समझ आ गया झूठ बोल रही हूँ और नहीं बोलना चाहिए. कोशिश की बहुत ज़्यादा कि नहीं बोलना चाहिए. अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे I should stop emotionally blackmailing people. But वो तारे ज़मीन पर का डायलॉग है ना कि आप बोल देते हो कि बच्चा बीमार है ना, और बीमारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उससे ये तो पूछो कि वो बीमार क्यों है. Why are you lying is the question that you need to answer before trying to stop lying. Did you get your answer? Why Yes. were you lying? When I was very young, I was 8 years old, and there was this fight in our family, and I remember my mother was very affected by it, so she took pills. She took around 20 pills, and उस time पे I saw her in a very bad shape. And when we took her to the hospital, the doctor said if you were 5 minutes late, she wouldn't be here. I saw it, and I felt very betrayed by my own mom. मतलब मुझे लगा यार मम्मी ने मेरा सोचा ही नहीं यार, ऐसे कैसे वो चली जाएंगी. And I felt that the person जिसकी मैं पूरी लाइफ होनी चाहिए, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा अटेंशन, लव, केयर चाहिए, प्यार चाहिए, उसने डिसाइड कर लिया कि वो मेरा ध्यान ही नहीं रखेगी. सो उस दिन मम्मी को लगा कि क्या ही हुआ होगा, है ना, किसी ने नोटिस नहीं किया. बट फॉर अ किड, फॉर दैट इनर चाइल्ड, फॉर दैट 8-year-old गर्ल, इट वॉज अ वेरी बिग थिंग. एंड पोस्ट दैट whenever I felt that I was losing that love, attention, care, in order to protect myself, in order to not feel hurt the way I did that day, I used to lie. And now the time that I discovered all of this कि भाई ये इस वजह से होता था, it was easier for me to like identify my trauma and then understand the process of healing. पहले बोला झूठ बोल रही हूँ, नहीं बोलूँगी, and every time I used to say it involuntarily, मुझे गिल्ट आ जाता था कि भाई इतनी छोटी सी बात के लिए मैं झूठ क्यों बोल रही हूँ. Now that I've identified the root cause कि इस वजह से, इस टाइम से शुरू हुआ है. हम लोग खुद को ना लेबल्स दे देते हैं कि मैं झूठी हूँ, है ना, मैं मैनिपुलेटिव हूँ, मैं इमोशनली ब्लैकमेल करती हूँ लोगों को, मैं ऐसी हूँ.
बचपन में हम ऐसे पैदा थोड़ी हुए थे. You've learned it from somewhere along the way. Exactly. And there has been an experience that has shaped you to become the person who you Yeah. are. Because सही में हम लोग सब born तो एक innocent बच्चा ही पैदा होता है, और अपनी लाइफ में जिस तरह का माहौल और जिस तरह की environment conditioning वो देखता है, उस तरह से आप कंडीशन होते होते वो इंसान बन जाते हो जो आप फिर उस तरह से बिहेव करने लगते हो, उस तरह से आप सिचुएशंस में रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करने लगते हो. सो I can feel how painful it is to see your mother through that, and I can relate to it because I have also grown up in a family where I have not seen love between my parents, है ना. और ऐसा नहीं कि बहुत नफरत है या बहुत गिले शिकवे, बस प्यार नहीं है. और वो एक बहुत डिफिकल्ट स्पेस होता है होने के लिए, क्योंकि या तो आप एकदम नफरतें देखते हो तो आपको कुछ क्लैरिटी तो होती है ना कि ऐसा है तो क्यों है, पर जब आप देखते हो कि ये भी नहीं हो रहा है और प्यार भी नहीं है तो आपको समझ में नहीं आता है कि है क्या. And when you see it in the other families that parents are behaving in a certain way, they're excited about their kids' performance, they're excited about their kids' participation in something, and here you come to a home जहाँ पे किसी को कुछ पड़ी नहीं है, and you come to a place where parents are having their deep issues, and my mother has also, and even father has gone through those episodes where they wanted to just quit on life, and it's just so traumatic. And I have also personally अभी पिछले बहुत सालों में नहीं, बट जब बहुत छोटे होते थे मुझे भी लगता था ना कि शायद यही ठीक ऑप्शन होता है, दैट you don't want to go through life, and then you start lying to your friends because you're so ashamed of the place that you're coming from. You can't say truth about it because you feel यार उनके घर में तो सब अच्छा है, मैं कैसे बोल दूं कि my father is alcoholic जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम है, my mother has a temper issue, she can't deal with it, then I have my siblings. तो हम लोग उस तरीके से बड़े होते हैं, और मुझे लगता है सिर्फ पेरेंट्स का ही नहीं, जब आप देखते हो दूसरों के भाई बहनों में बहुत प्यार है और यहाँ बिल्कुल कट ऑफ हो with your own family or with your own siblings that you're growing up with, then you realize ये आ कहाँ से रहा है, क्योंकि पेरेंट्स ने कभी वो इन्फ्यूज नहीं किया. और ऐसा नहीं है कि they are bad parents, like you said कि parenting कुछ गलत और सही नहीं होती है. They were also figuring out along the way that how they want to sort of raise their kids. So they had not seen this environment where they were loved by their parents in a way, या उनको सिखाया गया था कि भाई के लिए भाई को होना चाहिए, बहन को होना चाहिए, and all of that sibling love, they didn't had any of it. So how could they possibly teach us? So we also grew up like that. But मुझे लगता है जैसा आपने कहा ना वनिका, एक लेवल के बाद आपके अंदर शायद कहीं ना कहीं वो maturity या वो you have an eye to sort of see and you have a perspective to sort of recognize that in your life. शायद हम सभी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत recognize कर पाते हैं. उस थोड़ी बहुत recognition को लेकर, whether you want to work on it actively, and that is a lot of work, to work through your traumas, to work through your insecurities, to work through your worst possible fears, is a lot of work, and it's a very difficult journey and a path to walk on. But if you choose to make that walk, it can be an extremely liberating experience for you to just be able to express yourself that much better. And you are a storyteller. So आप कहानियाँ बताते हो अपनी ज़िंदगी के किस्से, और उसको और बेहतर और ब्यूटीफुल शब्द देके, और इतना जब सेल्फ एक्सप्रेशन एक स्टोरी टेलर का निकल कर आता है, that speaks volumes about the self work also that you have been doing over the years. So talk us through that, your journey of self work. It started because I was denied. मुझे ये समझ आ गया था कि मुझे एक स्पेस क्रिएट करना है अपने लिए, where I can create an individual identity, and thanks to my mother I got this zeal in me, because I was like मुझे मम्मी की तरह नहीं बनना. और वो जहाँ जितना नेगेटिव था ना, उतना ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस मेरी लाइफ में भी लेकर आया. बिकॉज आई वॉज लाइक आई कांट डिपेंड ऑन माई फैमिली नाउ, आई हैव टू क्रिएट समथिंग ऑफ माई ओन. मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है. जैसे कि आई ऑल्सो सॉ अदर women in my family who were going through the same issues as my mother. They were not allowed to go out, they were not allowed to make their own choices, they were asked to marry random strangers, forcibly marry strangers, and then just wait for a family to happen. तो वो सारी चीज़ें जब मैंने अपनी फैमिली में ऑब्जर्व की, तो मुझे ऐसा था कि देख, तुझे अपने लिए स्पेस क्रिएट करना है. यू हैव टू आउट परफॉर्म, यू हैव टू बी अ पर्सन जो अपने पापा से हक से जाके बोल सके कि पापा मुझे ना अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए डिसीजन लेना है. सो दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड एन NGO एट अ वेरी यंग एज. How old were you when you started Denied? I was 16 years old when I started Denied. और वो इसी चीज़ से निकला था कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है, मुझे अपने आप को बताना है कि सो आई ऑल्सो लुक वेरी यंग.
और मेरे You are हाथ, very young. हाँ मतलब हाँ वैसे मतलब 22 साल के हिसाब से भी तो मैं यंग लगती हूँ ना. हाँ, तो मेरे true. हाथ लाइक दे आर वेरी स्मॉल. माय फीट, मेरा फुट साइज इज 1, UK 1. Really? Yes. Wow. Mine is UK 7.58. हाँ, तो मेरा एक है, अब आप कंपेयर कर लो. तो all of these things were there and that is why everybody in school used to call me very immature, है ना. क्योंकि उनको लगता था, देखकर मुझे लगता था कि ये लड़की संभाल नहीं पाएगी, शी इज इररिस्पॉन्सिबल, शी इज इमेच्योर. ऊपर से झूठ भी बोल रहे थे. You were हाँ pretending also. You were. exactly, I was acting childish. So I was like, I need to create something for myself and I'll start something. So that something was an artist community that I decided to create. It was called Denied, for people like me who are denied of the opportunities. ऐसा वो था. और हमने, अब मैं उस टाइम पे ऐसे थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपना पहला वीडियो कहाँ शूट करूँ. तो मैंने सोचा कि मैं एक NGO में करती हूँ, क्योंकि NGO में अगर शूट करूँगी ना तो वो इमोशन ऐड हो जाएगा और उसके साथ साथ स्पेस भी फ्री में मिल जाएगी. तो ये मैंने दिमाग लगाया. और जब मैं वहाँ पर गई अपने पहले इवेंट के लिए, तो बच्चों को कलर्स देखकर मुझे ऐसे लगा कि यार नहीं यार, आई वॉन्ट टू डू दिस मोर ऑफन, बिकॉज आई सॉ देम बीइंग सो हैप्पी विद जस्ट अ स्मॉल पैकेट ऑफ क्रेयॉन्स, जो मेरे लिए या फिर मेरे जैसे दूसरे लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. And suddenly I started to feel important. The simple and small joys of life. Do you think that we have forgotten to be happy and be content with the simple joys that life give us? It's because we question. हम लोग इतना क्वेश्चन करते हैं ना खुद के चीज़ों को. हम हर चीज़ को ना वो देना चाहते हैं लेबल कि ये अच्छा है, ये बुरा है. Like for example, even when I was doing this for people, I knew that I was doing it because it made me feel important, not because मेरे को गरीबों की जिंदगी बदलनी थी या फिर I wanted to do something great for them. I was doing it because I felt important in their lives, which I was not feeling at home. So I was happy, but I was still not happy because there was guilt within me. अगर यहीं पे मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि चलो ठीक है, माना मेरा मोटिव सेल्फिश है, लेकिन मैं कर तो अच्छा काम रही हूँ ना, that makes you happy. Just being able to understand that there is nothing wrong or right in life. हमको स्टार्ट ही ऐसा करवाया जाता है कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है. एंड दैट सही और गलत दुनिया में देखते देखते कब हम अपने हर एक्शन को इतना इवैल्यूएट करने लग जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता. एंड देन वी क्वेश्चन एवरीथिंग दैट वी डू और दैट इज हैपनिंग अराउंड अस. एंड आई एम वेरी फिल्मी, तो वो वाला मूवी का लिरिक है कि कल पे सवाल है, जीना फिलहाल है. सो वी क्वेश्चन एवरीथिंग. इतने सवाल हैं जबकि हमें वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट आवरसेल्व्स. इवन इफ यू आर जेलस, it's fine, understand why you are jealous. If you are angry, understand why you are angry. Anger is a good emotion. Jealousy is a good thing. It's just you have to channelize everything in the right way. Absolutely. So emotions are not at all bad. Sometimes, people feel that अरे उसको गुस्सा बहुत आता है, she's a very angry person or he's a very angry person. That's a negative thing to be. No, you have to understand to regulate that emotion so that it can work for you. Yeah. एक इमोशन आपको फील होता है और अगर आपको एक्सट्रीम में फील होता है, सो दैट मीन्स दैट यू हैव द कैपेसिटी टू फील थिंग्स, यू हैव द कैपेसिटी टू सी अ पोटेंशियल समथिंग इन दैट थिंग दैट अदर्स आर मे बी नॉट एबल टू सी. अगर आपको कोई सिस्टेमिक चीज को देख के बहुत एक एक्टिविस्ट वाली फीलिंग आती है, बहुत गुस्सा आता है, या अपने घर पे किसी चीज को देखकर आपको बहुत सैडनेस होती है, या किसी की कोई डिप्रिवेशन को देखकर आपको एक उनके लिए एक फीलिंग ऑफ कंपैशन आता है. सो दीज आर ब्यूटिफुल इमोशंस एज लॉन्ग एज यू नो हाउ टू चैनलाइज देम इन अ वे दैट दे वर्क फॉर यू एंड दे वर्क एट द सेम टाइम फॉर अदर्स ऑल्सो. Right? So that is a very beautiful perspective to sort of live life with and not judge your negative emotions, especially the negative emotions. Positive mein to we take it ekdam se to our ego and start feeling good about ourselves. Oh, like you said that you were saying I was feeling important. We start doing all of this when good things are happening and we are experiencing good emotions. But when we experience negative emotions, we also start more than others. दूसरे तो करते ही आपको label, but आप खुद को label करने लग जाते हो कि I am an insecure person, I am a jealous person, I am an angry person. Fine. Okay, that could be your truth for now, but what can you do about it? And what can you learn from there? क्योंकि वहाँ पे अगर हम उसमें रिफ्लेक्शन ऐड कर दें, थोड़ा सा हम उसमें वापस रील बैक करके देखें कहाँ से रहा है, तो इतनी सारी मैसिव लर्निंग वहाँ पे हो सकती है.
Vanika, also take me through your experiences of adulting. And I would say adulting because you identify yourself as an old soul. कि मैं तो बहुत जल्दी बड़ी हो गई थी, बहुत जल्दी mature हो गई थी. And you have done a lot of things. Like you have founded some 7-8 companies, so to speak, चाहे वो startups, travel company से लेकर अपनी NGO से लेकर artist community से लेकर, you have sort of ventured out into a lot of spaces. आपने create की और ऐसा नहीं कि आपको success नहीं मिली. You did wonders. You did some of the big events in those individual companies that you opened. लेकिन then you leave all of them. Why is that so? You know, I never started something because I wanted to be like a successful entrepreneur. मैंने कभी उस मोटिव से चालू ही नहीं किया. मुझे अगर कुछ करने में मजा आ रहा था और मुझे उस चीज के लिए एनर्जी मिल रही थी तो मैंने वो चालू किया. जैसे फॉर एग्जाम्पल दैट NGO ऑल्सो वॉज नॉट सपोज टू बी एन NGO. It became that and I was enjoying that process. Then things happened and suddenly one day I did not want to do it. I did not feel the same energy in doing it. So even though I was guilty for, ऐसा होता ना कि आप किसी चीज को पूरे मन से दिल से क्रिएट करते हो एंड देन यू ब्रेक इट ऑन योर ओन, सो इट्स डिफिकल्ट. बट अगर मुझे एनर्जी नहीं आ रही थी तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. But you were able to identify that you don't have the same kind of passion that you started with. So to start something, to found a company, it takes a level of conviction and courage to do that. But to then break it or close it or end it, it takes another level of courage and conviction, especially when it's doing well. Yeah. तो वो एक अपने आप में एक बहुत ही empowering decision है. So how do you come to that decision? What makes you decide that now I want to move on to my next passion or next project? पता नहीं, मतलब ऐसा होता है कि अगर मेरा मन है ना कुछ करने का तो भगवान भी ऊपर से आके बोलते हैं कि तेरे से नहीं हो पाएगा, मैं फिर भी करके दिखा दूंगी. मतलब इट इज दैट काइंड ऑफ पैशन, दैट एनर्जी कि भाई मुझे करना है यार, मेरे को करना है और मैं करूंगी और मैं कर भी लेती हूँ. बट देन उसी प्रोजेक्ट में जब छोटी सी बात आती है, बड़ी सी बात आती है, जब मुझे ऐसा लगता है यार मुझे नहीं करना, हो नहीं रहा है, ये नहीं समझ आ रहा, एंड आई एम अनेबल टू फाइंड सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, देन आई अंडरस्टैंड कि भाई ये इसीलिए हो रहा है because you don't feel the same way about it and now is the time that you call it off या फिर take a pause. And I was extremely guilty about not continuing my startups every time I did it. मतलब फर्स्ट टाइम जब बंद किया तो मुझे गिल्टी फील हुआ बिकॉज वी वर अ कम्युनिटी ऑफ 5,000 स्टूडेंट्स एंड 200+ volunteers over 15 cities. Wow. It was a huge community. और मेरे एक डिसीजन की वजह से वो पूरी कम्युनिटी फॉलो आउट कर रही थी. आई वाज वेरी 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 गिल्टी. पर हुआ. उसके बाद आई स्टार्टेड समथिंग एल्स एंड देन इट डिड नॉट वर्क आउट. आई couldn't feel the same way about it. That went off. ऐसा करके 3-4 बार हुआ एंड बिकॉज आई अंडरस्टूड दिस पैटर्न मेरे लिए कुछ स्टार्ट करना भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि मुझे पता था आई विल कम टू दैट स्टेज अगेन. सो डू आई वांट टू डू इट? पर फिर जैसे मैं बंद करने से रोक नहीं पाती ना खुद को, वैसे ही मैं शुरू करने से भी नहीं रोक पाती खुद को. अगर मन कर रहा है ना, अगर ये चीज़ इंटरेस्ट कर रही है ना कि ये करना है तो करना है. एंड दैट इज़ व्हेन माई रीसेंट वन विच वॉज पिंक एक्सपीरियंसेस. मुझे बेसिकली ट्रैवल करना था और मेरे को पता था कि पापा ऐसे मानेंगे नहीं, तो मुझे कैसे ना कैसे करके जुगाड़ करना था ताकि मैं ट्रैवल कर सकूं, मैं दुनिया देख सकूं. मुझे ऐसा लगा यार कितनी सुंदर सुंदर जगह है ना जहाँ पे आई वुड वांट टू गो एंड आई वुड वांट टू एक्सपीरियंस, आई वुड वांट टू मीट पीपल एंड दिस इज समथिंग दैट आई रियली लाइक डूइंग. तो मैंने सोचा इससे पैसा कमाना शुरू करते हैं. आई बिलीव इंडियन पेरेंट्स कैन अग्री फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग इफ यू आर मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट. ट्रू. Any parent, I think. It's easier to convince them, है ना, क्योंकि पैसा जरूरी है. And it's not even wrong because the background that they come from, the time that they come from, उस टाइम पे उन्हें अपना एक एक पल जोड़कर बहुत पैसा कमाना पड़ा था to give a stable life. So they have seen money changing the way they live or they feel about life. Money has played a very important, I think majority of their life was about the quest of money. Yeah. आज हम यहाँ बैठकर इमोशंस की बात कर रहे हैं और पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, परसेप्शन की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दीज मोर कॉम्प्लेक्स इशूज इन आवर लाइव्स. बट उनके लिए तो जिंदगी की एक ही जद्दोजहद थी ना कि कैसे अगला दिन हम अपने फैमिली को चला पाएं. एग्जैक्टली. सो आई न्यू कि अगर पैसा कमा पाऊंगी तो इसीलिए स्टार्टअप करते हैं. लेट्स स्टार्ट
let's take people on curated group tours, and that is how it started. But when you start these companies, do you have also people working with you? How do you fund their salaries, or how does it happen? Initially तो नहीं होता, but eventually when people start traveling or people start working or they become a part of it, then they are interested in the work that I do, because the energy that I create in every startup of mine is very positive. It's like me growing, and when people see that someone is growing and someone has positive energy and they're out with a good motive, they would want to join it. So initially जैसे Pink Experiences के साथ I did not have a team, but then people started joining in. Now, how many And people did you have? So Pink Experiences में I had 6 people who were working and they were being paid, and this was the first startup where I was paying people, and this was getting, because it was a profitable startup. We had hosted 600 people for 1.5 in the duration of 1.5 year, और काफ़ी अच्छा चल रहा था, काफ़ी बढ़िया चल रहा था. एंड अभी तो सब बढ़िया चलना शुरू हुआ था, क्योंकि हमारी सारी ट्रिप सोल्ड आउट जा रही थी. लाइक सो मेनी पीपल वांटेड टू जॉइन इन, सो मेनी पीपल वांटेड, एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि अ लॉट ऑफ गर्ल्स रिलेट टू मी. उनको ऐसा लगता है यार ये लड़की हमारी तरह है. And that is why they started associating themselves to my travel journey and me going out of my house and experiencing the world. So they wanted to be a part of my trips, and I had so many requests. But मेरा वो पॉइंट आ गया था और मुझे पता था कि अब मुझसे नहीं हो रहा है. So I tried this time to not quit. मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने कंपनी को रजिस्टर करवा दिया, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दिया और बहुत सारे नई नई चीज़ें ले आई ताकि GST नंबर ले लिया. हाँ, GST नंबर ले लिया. और मैंने ऐसा करा कि नया प्रोजेक्ट, नया चीज़ इंक्लूड कर लेती हूँ उसमें. सो आई डिसाइड दैट आई एम गोइंग टू पुट अ मार्केटिंग प्लान इन प्लेस. आई एम गोइंग टू गेट टी-शर्ट्स एंड पूरा मर्च बनवाऊंगी मैं इसका, तो ताकि मैं इंटरेस्टेड रहूँ इस चीज़ में. बट वो फीलिंग इतनी स्ट्रांग थी ना कि मुझे पता था कि नहीं होगा. एंड दिस टाइम ऑल्सो व्हेन आई वाज डिसाइडिंग टू क्विट, आई वाज वेरी गिल्टी. But at the same time, I was working on one of my projects with storytelling, मेरा 1 hour special. तो मैंने उसमें I was working on it, and that is when I decided to understand कि ये भी क्यों हो रहा है. तो मुझे सबसे पहले तो ये पता चला कि मैंने Pink Experiences इसलिए भी नहीं शुरू किया था कि मुझे ट्रैवल करना था, which was one reason. But मेजर रीज़न यह था कि मुझे घर से दूर रहना था. मुझे घर पे नहीं रहना था, क्योंकि कोविड के बाद आई वॉज नॉट, अगेन इससे पहले आई वॉज स्टडिंग आउटसाइड. मैं 18 साल की उम्र में बाहर निकल गई थी घर से, तो अब मेरा घर पे वापस जाने का मन नहीं था, इसीलिए आई नीडेड समथिंग जिससे मैं घर से बाहर रहूँ. तो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस. और जब तक उस कंपनी का रीज़न या फिर मेरा उस कंपनी के लिए काम करने का रीज़न ये था कि मैं अपने घर से दूर भाग रही हूँ, तो मैं कभी उधर सेटिस्फाइड फील ही नहीं कर पाती, क्योंकि आप भाग भाग के भी अपने खुद के घर से दूर नहीं भाग सकते. You have to face your family, you have to face your past, you have to face everything. हो सकता है आप अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दो और अपने पास्ट ट्रॉमा को, उन लोगों को देखने का मन ही ना करे आपका, जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें दी हैं जो आप खुद के बारे में पसंद नहीं करते, लेकिन करना पड़ता है. But are you able to forgive those people in the process of your healing? I think my mother is the most beautiful human being. And she has made me this person that I am now. और so it started with my healing. जब मैं हील हुई, जब मुझे अपना ट्रॉमा पता चला, तो मैं खुद को माफ़ कर पाई. और तब मुझे समझ आया कि किसी को बदलने के लिए ना किसी को समझना पड़ता है, और किसी को समझने के लिए उन्हें बदलने की ज़िद को छोड़ना पड़ता है. और जब आप किसी को बदलने की ज़िद को छोड़कर उन्हें समझने लग जाते हो ना, तो वो अपने आप बदल जाते हैं, या फिर उनकी तरफ आपका नज़रिया अपने आप बदल जाता है. तो सबसे पहला वो मेरे तरफ बदला, खुद की तरफ. एंड आफ्टर दैट आई वाज लाइक, मम्मी आपको भी अपना ट्रॉमा, यू आर ऑल्सो एक्टिंग आउट ऑफ योर फियर्स. आप भी है ना बुरे नहीं हो, जैसे मैं बुरी नहीं हूँ. यू आर ऑल्सो एक्टिंग आउट ऑफ योर ट्रॉमा, सो जस्ट फिगर योर पास्ट आउट, फिगर थिंग्स आउट. एंड आई वॉन्टेड हर टू स्टार्ट हर हीलिंग जर्नी. But how did you start your healing journey? Did you go to a therapist? I realized that I was having panic attacks in March this year. And that time I decided to go to a therapist. But unfortunately, मेरा therapist के साथ जो relationship था,
वो जो इंसिडेंट था वो भी सही नहीं हुआ, बिकॉज दैट थेरेपिस्ट वॉज पुटिंग वॉट आई वॉज सेइंग आउट ऑन सोशल मीडिया. सो आई फेल्ट बिट्रेड बाय दैट थेरेपिस्ट एंड शी हैड basically, But was she putting out your name also? And yes, she everything? was talking about it in her circle that there is this girl Vanika, and my experience was with her was very bad. So थोड़ा वो गलत हुआ. उसके बाद मैंने I decided one day कि अब मेरे को करना पड़ेगा. So I started with therapy with someone else, and that was very calming. So my therapist, after hearing everything that I was feeling and everything that I'd gone through, she said कि आपको 1 साल लगेगा. And she asked me to take a test which was an anxiety and depression test, and मेरे levels बहुत high आए थे उसमें. और मैं ये बात ना अपने पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल थी शेयर करने में, ना किसी और के साथ. This you were doing all by yourself? All going by to myself. a therapist, finding all a by therapist. myself. And I did share this with one of my friends, and she said if you need anything. पर पता है, I don't know, it is a good thing also, and it is a thoda slightly wrong thing also कि I like doing things by myself and I like fighting my own battles. और मुझे बड़ा टाइम लगता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, कन्फ्यूजन होता है, लेकिन मैंने ऐसे ही किया है अब तक. एंड आई वुड वॉन्ट टू टेक हेल्प. I seek help also, but in the end it's just me and my struggle. So that was there, and my therapist told me कि आपको 1 साल लगेगा. और मैं ऐसी थी ठीक है, बट आई वोंट टेक पिल्स. मैंने उस टाइम मना कर दिया था कि मैं पिल्स नहीं लूँगी. आई वॉन्ट टू टेल मी वॉट शुड आई डू. सो शी टोल्ड मी कि आप एक काम करो, आप पेंटिंग करो, आप हर दिन कोई नई चीज़ करो, आप कलर बुक ले आओ, कलर बुक करो, आप सूदिंग म्यूजिक सुनो. उसने मुझे टेक्निक्स बताई, ब्रीदिंग कंट्रोल की, काफ़ी चीज़ें बताई. और अगर एक इंसान, जैसे मैंने बोला ना, अगर मैं कोई चीज़ ठान लेती हूँ तो मैं कर ही लेती हूँ. तो मेरे को ये पता था कि मुझे हील होना है, अब मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है, मुझे पैटर्न समझ आ गया, मुझे इस पैटर्न से बाहर निकलना है. तो मैंने पूरी दीवारें पेंट कर दी. और मैं उस टाइम आई वेंट टू बीर बिलिंग विच इज़ वैली इन हिमाचल प्रदेश. और मैं वहाँ पे गई और मैंने हर दिन कुछ ना कुछ नया करना शुरू कर दिया. आई यूज्ड टू गो ऑन वॉक्स with different people. I used to meet random strangers. I used to paint walls. मैं कुक करती थी. जो भी चीज़ मुझे अच्छी लग रही थी ना, उस टाइम पे मैंने कोई स्ट्रेस नहीं लिया कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है. मुझे सिर्फ हील होना है. और आई डिड न्यू थिंग्स. मैंने गार्डनिंग किया, मैंने वीडियोस बनाई, मैंने पेंटिंग सीखी, मैंने पॉटरी सीखी. और ये सारी चीज़ों ने मुझे खुद के साथ टाइम दिया, जिसकी वजह से आई फेल्ट बेटर एंड माई एनजाइटी अटैक्स, वो चीज़ें काफ़ी कम हो गई. बट आई डिड नॉट हील दैट टाइम एंड आई स्टॉप्ड. एंड माई थेरेपिस्ट वाज सरप्राइज कि आपने ये 1-1.5 महीने में कैसे कर लिया. मैंने कहा दोस्त, अगर मन बना लो ना, और अगर पूरे दिल से कोशिश करो, तो योर हीलिंग प्रोसेस ऑल्सो बिकम्स फास्टर. एंड देन आई स्टॉप्ड थेरेपी. मुझे नहीं करना चाहिए था, बट आई डिड. बट थैंकफुली आई स्टार्टेड राइटिंग माई 1 hour शो. मुझे ऐसा लगता है कि ख्वाब ना हम नहीं, भगवान हमारे लिए देखते हैं. और जब हम एक ख्वाब की तरफ पूरी तरीके से काम करते हैं ना, अगर उस चीज़ पे फोकस करके बहुत अपना दिल लगा देते हैं, अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ उसमें काम करते हैं, तो एवरीथिंग एल्स इन आवर लाइफ्स ऑल्सो स्टार्ट्स टेकिंग शेप एट टाइम्स. एंड थैंकफुली माई स्टोरी टेलिंग, माई राइटिंग हैज़ ऑलवेज बीन अबाउट सेल्फ डिस्कवरी. तो दिस टाइम व्हेन आई स्टार्टेड writing my 1 hour show, I was like मैं किस बारे में लिखूं. मुझे नहीं पता था मैं किस बारे में लिखूं. तो I started ideating upon different things. I got a mentor on board. She's also a storyteller. And in that process of writing, I started healing. In that process of writing, I identified my trauma. I understood different things about myself. I was able to understand myself, and then my mother, and then my family. Then forgiveness came in. एंड देन आई रियलाइज कि ओ, मैं स्टार्टअप्स इसलिए कर रही थी ताकि मैं घर से भाग सकूँ और मैं इंडिपेंडेंट रह सकूँ, ताकि मैं अपनी फैमिली से डिपेंडेंट ना रहूँ. वो सही था सब, लेकिन मोटिव थोड़ा गलत था. इसी वजह से आई वाज आल्सो फीलिंग सो डिटैच्ड आफ्टर अ पॉइंट. या सो वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई मुझे मेरी स्टोरीज की वजह से हुई. एंड दैट इज़ आई रिस्पेक्ट माई आर्ट फॉर्म सो मच, बिकॉज आई थिंक these stories, this discovery, this ability to write and express has saved me, has helped me heal so fast, has helped me be this person
has helped me be this person जो आज who can understand that loneliness is so beautiful. Being alone is so beautiful. Like I like spending time with myself. I can go anywhere and just be with myself and still feel happy. And वो जो calmness मेरे अंदर आई है और जो loneliness के साथ मेरा relationship बना है, from feeling like loneliness is sucking life out of me to feeling that loneliness is the most beautiful flower in my garden. Loneliness and solitude are two different things. So loneliness is a feeling where you feel alone, you feel Yeah. that you're deprived of the company of people. But solitude is like your me time. Yeah. That this is the time where I can heal, where I can create, where I can think more, where I can produce more, and where I can just have a better self expression. Yes. क्योंकि ये सिर्फ मेरा टाइम मेरे खुद के लिए है और वो एक किसी भी क्रिएटिव इंसान को, और सिर्फ क्रिएटिव इंसान को नहीं, किसी को भी चाहिए होता है दैट डाउन टाइम टू जस्ट बी इन देयर ओन कंपनी, बी विद देयर ओन सेल्व्स. और आपका लोनलीनेस के साथ रिलेशनशिप ही तभी चेंज होता है जब आपका खुद के साथ रिलेशनशिप चेंज होता सब है. यहीं से शुरू होता है. सब Everything like we want reels to back. change the world but we don't understand that the world is within. and हम लोग ना खुद को इतना, आज भी मैंने सोचा, मैं किसी को बता रही थी कि हम लोग ना खुद को इतना इम्पोर्टेंट मानते हैं कि हम बताएंगे क्या सही है क्या गलत है, दुनिया में ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए. इट्स बिकॉज हम वो खुद को बता रहे हैं, और जो हम खुद को बता रहे हैं, जो रिलेशनशिप हमारा खुद के साथ है, वही हमारा हर रिलेशनशिप अफेक्ट कर रहा है. हम बाहर सब बदलना चाहते हैं और वो नहीं बदल पाएगा. वील ऑलवेज बी अनसेटिस्फाइड, वील ऑलवेज बी कंफ्यूज्ड एंड एंग्री. हम हमेशा यही सारी चीजें फील करेंगे क्योंकि हम चेंज ही गलत चीज करना चाह रहे हैं. हमको तो यहाँ पे देखना है. And the moment you work on your relationship with yourself, every other relationships make sense. And it's easier to be in a community. It's easier to understand people. It's easier to forgive people. It's easier to just understand that your past is your past, not your present trauma. Correct. A better world in the end is just a better you. Yeah. And all of us start becoming better versions of ourselves. If we do so, I think we'll end up creating a better world for everybody else to experience. Yeah. Right? So healing is important. Identifying your trauma is important. And I think in life, I think most of us, we get opportunities where we can see that, you know, these are things which are not working for me. These are the patterns. Those are not working for me. If you really have the intention to see that, life gives you those opportunities. I'm so glad that you took on these opportunities and you went on the quest. Yeah. है ना. मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि हम सभी की लाइफ में सिचुएशंस, परिस्थितियाँ, सर्कमस्टांसेस, अप्स एंड डाउन्स अलग अलग शक्लों में ज़रूर आते हैं, लेकिन होते सेम ही है. हम लोग जो भी चीज़ें एक्सपीरियंसेस करते हैं अलग अलग रीजंस की वजह से एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन वो चीज़ें इन द एंड जो हम फील करते हैं इन द इनर वर्ल्ड, वो तो सेम ही एक्सपीरियंस होता है. जैसे कि फॉर वानिका, लव could come from, let's say, a partner, or love could come from her work. For me, it could come from my work. For me, it could come from my pet. For me, it could come from an art form that I'm interested in. For somebody else, it could come from cooking or whatever, you know. But that emotion जो आपको अंदर फील हो रहा है वो चीज़ करके, वो तो लव ही है ना at the end of the day. तो हम, मुझे लगता है हम सारे, we are all fighting different battles in the outer world जो एक different तरीके की लग रही हैं, लेकिन somewhere जो quest है उन सभी battles का वो तो same ही है. All of us want to attain some sort of peace in our life at the end. We want to attain some sort of financial stability. We want to experience companionship in our life. We want to be able to enjoy our own company. Quest तो सभी का essentially वही है ना, चाहे आपकी. इसीलिए मुझे लगता है इस तरह की conversation, जैसा आप stories की बात कर रहे हो, your stories don't just have the power to heal you individually, but they do have the power to impact the world at large and really move the needle where it's needed. And it is doing so in your case. Yes. On your social media, you have a very, very serious cult following, if I may say so. You have some 3.5 lakh subscriber on your Instagram, some 30K on your YouTube, and it's growing. And you're just 22. And how many years has it been for you to be doing social media content? 2 ही साल हुए हैं. 2 ही साल में you have been able to build this much audience, which is incredible. I think I'm very blessed. And it's because I think the most beautiful part is कि ये सब एक कोइंसिडेंस है. मतलब मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं अपनी कहानियाँ बताऊँ कि मुझे दूसरों की लाइफ बेटर करनी है, मुझे अपनी कहानियाँ दूसरों तक पहुँचानी है. नहीं, कभी ये नहीं रहा. मुझे हमेशा ये था कि यार मेरी कहानी है, मुझे खुद को बताना है. वो जो सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है ना, वो सारी मेरी खुद के लिए हैं. वो सारे वो लेसन्स हैं जो मैं खुद को बार बार रिमाइंड करवाना चाहूँगी. एंड
thankfully there are so many Vanikas out there who are listening to those stories, and they are also healing like I am. They are resonating with those stories. They're They're able to understand the message in those stories. That is the beautiful and honest power of stories. और जैसा आपने कहा ना कि हम लोग बहुत क्रांतिकारी रूप में शुरू नहीं करते हैं कि मुझे दुनिया बदल देनी है Yeah. या मुझे पता नहीं क्या कर लेना है. For me also it started out like that you know this podcast also, I want to initiate the dialogue. I want these conversations about emotional well-being, about your own healing, about mental well-being, about your inner world to start. But it's not with an intention to change the world per se. It's an intention to be able to experience and express myself fully. और जब आप वो एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशन अपना ढूंढ लेते हो, अपना सेल्फ एक्सप्रेशन आपको मिल जाता है, वो इतनी ब्यूटीफुल और पावरफुल फीलिंग है कि मुझे लगता है ये सब फील कर सकते हैं, सबको फील करनी चाहिए. काम की ज़रूरत है, सेल्फ वर्क की ज़रूरत है, थोड़ी सी अपने लिए खुद के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन वो जो फीलिंग आपको फील होती है ऑथेंटिक होने से, जब आप अपने सच को ओन करने लगते हो. Like till the time Vanika was living a lie or was saying lies or was being manipulative, शायद उनके वो जो छोटे छोटे उस टाइम पे जो भी चाहती थी वो चीज़ें मिल रही हों, लेकिन उस सच को बोलने के बाद और अपने सच को एक्सेप्ट, सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना होता है ना कि यार ठीक है, आई डोंट कम फ्रॉम a family which is a very let's say ideal environment to grow up in. Maybe it's dysfunctional in its own ways, and I think all the families are. There is no definition of a perfect family. और ये Right? एक्सपेक्ट करना अपनी फैमिली से कि, और ऐसा मानना कि यार मेरी फैमिली परफेक्ट है, मेरे मम्मी पापा ने ट्रॉमा देखा ही नहीं है और हमको सब बढ़िया मिला है, ये सब झूठ है. ये सब झूठ है. या आप खुद से कह रहे हो, दुनिया से कह रहे हो. आई थिंक वी हैव आइडियलाइज्ड, मतलब आप इंस्टाग्राम पे देखोगे, यूट्यूब पे देखोगे, सब मम्मी के बारे में तारीफ कर रहे हैं, सब पापा भगवान होते हैं, माँ भगवान स्वरूप होती है. हमने इनको इतना आइडियलाइज कर दिया है कि हम उनके फ्लॉज को देख ही नहीं पाते. और जब तक हम उनके फ्लॉज को नहीं देखेंगे, जब तक हम उन्हें एज अ फ्लॉड ह्यूमन बीइंग नहीं अपनाएंगे, तब तक उनका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और एक अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा. क्योंकि इवन इफ यू डोंट वांट टू सी योर मदर दैट वे, इनवॉलंटरी आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें आ रही हैं और आप इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे आइडेंटिफाई करो, एंड दैट इज व्हेन यू विल शेयर अ रियल कनेक्शन विद योर ओन मदर. Absolutely. To experience that real authentic connection with your own family or with anybody else, you have to also ठीक, तो accept. नेगेटिव्स, हाँ, And you have to acknowledge that they do have Yeah. negatives. माँ को इंसान समझना भी जरूरी है. आप इंसान समझोगे ना, तभी वो माँ भी विदाउट गिल्ट कैन डू मदरली थिंग्स टू यू. Otherwise, I've seen so many mothers and so many fathers are live in guilt कि वो अपने बच्चों के लिए ही नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया. It's very difficult. It's very difficult. They always live in guilt. और उस guilt के चलते ही वो अपने अपने सपने दबा देते हैं. And it's always the confused relationship. We talk about how our generation is not sharing a very beautiful bond with their parents. हम लोग अपने मम्मी पापा से झगड़ा करते हैं, ये करता है, वो करता है. It's because we are a generation of people who are aware. We are a generation of kids who like to question. We are a generation of kids who have been introduced through the idea of emotional well-being. हम लोग वो सारी चीज़ें करते हैं, हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं, तभी हम सवाल करते हैं. पहले नहीं था ऐसा. शायद पहला ऐसा था कि बहुत सारे सिबलिंग्स हैं पहले तो है ना. अभी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, जॉइंट फैमिलीज थी पहले. सो they used to just be in themselves. अभी जिस टाइप का माहौल है उस हिसाब से ही हम पैदा हुए हैं. ऐसा तो है नहीं ना कि हमको भगवान ने ऊपर से बोला था कि तुम लोग जाके ना बिगड़ी हुई जनरेशन बन जाओ. नहीं यार. I've seen so many people blaming our generation to be a generation of spoiled brats, of people who are not happy, of people who are depressed. It's because we live in a world like this. It's because we are aware of trauma. आप लोगों ने भी ट्रॉमा देखा है, आप लोग भी उसे फील करते हो, बट हम उसे आइडेंटिफाई करना है, एंड वी वांट समथिंग मोर. वी वांट टू हील दैट ट्रॉमा बिकॉज वी नो इट. एंड सिंस वी आर ऑन दिस जर्नी, यू लुक एट अस एज अ जनरेशन ऑफ डिप्रेस्ड पीपल. बल्कि True. हम तो बेटर हैं बिकॉज हम चाहते हैं अपनी लाइफ को बेटर. At least we are trying to make that difficult journey and, try to take the ownership of our own life and the Exactly. experiences that we are experiencing. Vanika, share with me one of your most difficult traumas or traumatic experience that you have gone through in your life recently. Recently,
Well, it's a good thing that you can laugh about it now, because it means that it's not a trauma anymore. It's not Yeah, triggering you or holding you back anymore, which is a good right. thing to know. And I think it's a good start. It's So a you good should say start. what's on your mind. Don't try to filter it out. No, I am just thinking. So आई स्टार्ट ट्रैवलिंग लास्ट ईयर, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक ट्रैवल चालू कर दिया. मतलब मैं अपने घर पे 15-20 दिन से ज़्यादा नहीं रही पिछले 1 साल में, 1-1.5 साल में. तो बीइंग अ गर्ल एंड बीइंग आउट इन द वर्ल्ड इज़ वेरी डिफिकल्ट. इट्स नॉट ईजी. इट कम्स विद इट्स ओन गुड पार्ट्स एंड वर्स पार्ट्स एज वेल. आई रिमेंबर आई वॉज इन मनाली, और वहाँ पर रात को ना आई सॉ दिस ग्रुप ऑफ गाइज हु वर सिटिंग देयर एंड हु वर ड्रिंकिंग. तो मैंने उनको बोला कि आप रूम से बाहर निकल के ये जो करना है वो करो, मुझे सोना है. दे वर डूइंग इट इन द रूम. इट वाज अ डॉम. तो वो लोग निकल गए. उन्होंने कहा ठीक है. बट देन दे वर कॉन्स्टेंटली गॉसिपिंग कि यार ये लड़की चाहती क्या है, ऐसे एटीट्यूड में कौन बोलता है. इट्स बिकॉज आई डोंट लाइक समबडी जस्ट स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग. मैं सो गई जाकर. And I was dreaming. I was in my sound sleep. अचानक से I felt something and I got up. And there was this guy who was coming over me. And he just came over me and then I pushed him away and then I went downstairs. और मैंने मैनेजर को उठाया because I got very scared कि ये हुआ क्या, वो मेरे ऊपर आके क्यों सो गया. मैंने मैनेजर को उठाया. Was he so drunk, or was he Yes, trying he to was very attempt? drunk. He was very drunk. So that time I felt he was very drunk and he fell over me, and then I went to the manager. I asked him to see what is happening. He got everyone up in the room and then we were started talking कि भाई ये तू चाहता क्या है, ये क्या है, वो क्या है. Now this person was so drunk, who did not realize that he was falling on a girl, he got keys of the Activa and ran away in a second. And that is when my mind started to question कि यार अगर इतना drunk था ये, तो इसको 1 second में senses कैसे आ गए इतने, that he took the Activa keys and he ran away like he is nowhere to be seen. And then that incident became like everybody was thinking कि क्या करे. We even called police and they said कि वो लड़का आ जाए ना फिर बताना, we'll get him. I was like okay ठीक है. The next morning he did not come back yet, so we went to the police station and we of course asked the inspector to register a complaint and he was not ready. He said कि बेटा आप अकेले रहते हो मनाली में, आपकी उम्र क्या है. अच्छा वो लड़के से आपने कुछ कहा था क्या? आपने कुछ कहा होगा इसीलिए. अब वो लड़का तो चला गया, आप क्या करें. आप हॉस्टल में रहते हो तो वहाँ पे लड़का लड़की दोनों रहते हैं. मैंने कहा हाँ. कहता अगर आप शेर के गुफा में जाओगे तो शेर तो खाएगा ही ना. आप That is बकरी still हो. the mindset. एग्जैक्टली. इंस्पेक्टर मुझे कह रहा है कि आप बकरी हो और लड़का शेर है. अगर बकरी शेर के सामने जाएगी तो शेर तो खाएगा ही ना. एंड आई वाज रिकॉर्डिंग दिस एंड देन दे आस्क्ड मी टू, बिकॉज आई एम लाइक नहीं मैं तो नारी शक्ति और मैं इतना जल्दी नहीं डरूंगी. तो आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन माई ग्राउंड कि मुझे कंप्लेंट करवानी है. फिर उन्होंने मुझे फीमेल कॉन्स्टेबल्स के साथ भेजा. नाउ इन दिस रूम ऑल्सो दीज फीमेल्स आर टॉकिंग टू मी कि तुमने क्या पहन रखा था, तुमने क्या किया था. एंड दे आर विक्टिम शेमिंग लाइक genuinely. And I was so affected by the way I was treated in the police station. I had to call so many people, DSP, राजस्थान गवर्नमेंट का कौन किसका पापा है क्या है, उन इतने कॉल्स लगवा के just to register a complaint. And there were no questions about this guy. There were no questions, and this guy had run away. He was in Delhi. He was enjoying his life, and here I was in a police station and they said कि एक काम करो आप अपने मम्मी पापा को बुलाओ. I am 22 years old. I don't want my parents to come. Can you not register my complaint like that? पता है हमारे कंट्री में सबको मालूम है कि एक लड़की तभी टूट सकती है जब बात उसके अपनों की आए. दे नो कि पेरेंट्स को जब पता चल जाएगा ना कि बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो पेरेंट्स इज्जत के चक्कर में ना बेटी का स्टैंड नहीं लेंगे, या फिर बेटी उस डर में अपना स्टैंड लेना भूल जाएगी. एंड आई वॉज एक्सट्रीमली स्केर्ड कि मैं अपनी मम्मी को क्या बताऊँ, मैं अपनी मासी को क्या बताऊँ, मैं अपने पापा को क्या बोलूँ.
घर पे पता चल गया, पहले ही they were very scared to Send you send out. me out, and now that I've gone out, if they get to know about this, maybe I'll not get the opportunity to move out again, and it is very important for me to travel. तो वो सारी चीज़ें चल रही थी, एंड मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मैंने मासी को भी फ़ोन किया, मैंने कहा एक लड़की है, उसके साथ ऐसा ऐसा हो गया है, अब बताओ मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा अगर लड़की चाहती है, तू क्यों कर रही है, लड़की चाहती है तो कर, अब वो छोटा शहर है, उसमें ऐसी बातें होती है, तो लड़की को डिसीजन लेना चाहिए। और ऐसे करके उन्होंने भी मेरे को काफ़ी मैनिपुलेटिव स्केप्टिकल सा आंसर दिया कि मैं क्या करूँ। लाइक घर पे तो नहीं बता सकती, एंड दीज पुलिसमैन ट्राइड टू ब्रेक मी ऑन दैट पूरे तरीके से। What about the group of boys that They that had gone? the 3 guys that were there. There were 4 guys. एक लड़का जिसने किया था वो तो भाग गया था, 3 लड़कों को मैंने पकड़ के रखा था, हॉस्टल में बंद कर दिया था मैंने रूम में कि जब तक तुम्हारा दोस्त नहीं आएगा ना तब तक मैं नहीं जाने दूंगी। और ये क्या है, वो लोग भी ऐसे परेशान हो गए, ये लड़की चाहती है तो चाहती क्या है, and they were not expecting it out of me because I don't look that way, है But they ना? did not make a call. The police did not make the call to that No. guy. जबकि सब details थी. No, they were, उनका पूरा फोकस ही इस बात से था कि इस लड़की को कैसे मना करवा दे ताकि हमारा काम कैसे कम हो जाए। या तो एक पर्सपेक्टिव ये हो सकता है, या फिर दूसरा पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि इफ केसेस लाइक दीज कम आउट कि मनाली में ऐसा हुआ, सो इट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज आई फील सो मेनी केसेस गो अनरजिस्टर्ड, एंड आई थिंक कि आफ्टर एक्सपीरियंसिंग दैट, जब मुझे तोड़ने की इतनी कोशिश की गई तो कितनी लड़कियां तो टूट जाती होंगी एक सवाल से, और कितने केसेस तो रजिस्टर ही नहीं होते होंगे। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा केस भी रजिस्टर नहीं हुआ। मैंने उस दिन आई डिसाइडेड दैट आई एम नॉट गोइंग टू रजिस्टर दिस, आई ऑल्सो वॉकड अवे, एंड दैट टाइम आई थॉट टू माई सेल्फ कि मैंने कहा अगर तू नहीं करेगी तो कौन करेगा। सो आई गिव्ड अप करेज, आई कॉल्ड, एंड दैट इज द सेम टाइम आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई मदर, एंड शी सेड क्या हुआ, रो क्यों रही है, एंड आई टोल्ड हर एवरीथिंग, एंड सरप्राइजिंगली शी सेड कि तेरे को जो डिसीजन लेना ना तू ले, हम तेरे साथ हैं, कल मासी आ रही है वो देख लेगी। एंड दैट गिव मी इवन मोर स्ट्रेंथ। सो आई वेंट बैक टू द पुलिस स्टेशन, आई एम लाइक रजिस्टर करवाओ कंप्लेंट। मैंने जयपुर में आई हैव ऑल्सो वर्कड इन विमेन सेफ्टी सेल, 3 months की इंटर्नशिप की थी मैंने, तो वहाँ पे मैंने फ़ोन लगवाए और उन्होंने फाइनली रजिस्टर करने का सोचा। उतने में ही क्या हुआ, द बॉय बेसिकली अंडरस्टूड कि ये हो रहा है अब, तो ही कॉल्ड द पुलिस स्टेशन नाउ। और फिर उसकी मम्मी ने मुझसे बात की कि बेटा, मेरा जो बेटा है ना उसने गलती हो गई है, उसने कभी ड्रिंक किया नहीं है, पहली बार लाइफ में किया था, तो ऐसा ऐसा हो गया। एंड द मदर talked a lot about the son, and he was 17 years old. 17 years old. So I decided कि चलो ठीक है, आप एक काम करो, मैं यहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करवा रही, लेकिन आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर इन द पुलिस स्टेशन, एंड ही हैज़ टू कम एंड राइट अ अपॉलजी लेटर इन द पुलिस स्टेशन, ताकि वो कभी किसी के साथ ये चीज़ ना करे। एक बार इधर आके डांट पड़ेगी तभी वो समझेगा ना कि उसके साथ he should pay, and he said he agreed कि he'll do that, and his mother also agreed कि हाँ मेरा बेटा आ जाएगा। But after I took back my complaint and everything was sorted at the police station, the mother also started taking the son's side, and she was saying तुमने कुछ किया होगा, मेरा बेटा तो दूध का धुला हुआ है। ड्रंक वो था, रूम में गलत तरीके से एंटर उसने किया, गिरा वो मेरे ऊपर, भागा वो, लेकिन गलत तुमने किया। And the way the mother changed, I was like, एक मेरी माँ बदली है और एक ये माँ बदली है, दोनों अपने अपने बच्चे को बचाने के लिए बदली है, लेकिन एक आज मुझे सपोर्ट कर रही है जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और एक उनको गलत में सपोर्ट कर रही है। Being a girl, you have to go through things like this. It happens on an everyday basis. Everyday basis. मेरे साथ नहीं हो, किसी और के साथ हो. In my journey, I think the reason I am able to laugh on it is because now it has become a part of my life that happens every once in a while. मेरे साथ एक बार I was coming back home from like in Jaipur, और मैं एक्टिवा चला रही थी. There were 2 guys who were constantly like they were following me. बहुत ही ज़्यादा they were following me everywhere. I went inside a restaurant to take shelter, and the reception guy at the restaurant said to me कि तुम रात को क्यों आए, अगर तुम रात को निकलोगी तो लड़का तो करेगा ही ना, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। There's a large mindset that we are fighting against in this country. मुझे लगता है लड़कियों के लिए जो चीज़ें एक लड़का करने से और एक चीज़
के पीछे सोचता भी नहीं है, वहाँ पे एक लड़की को कितने संभाल के कदम रखने पड़ते हैं। और अगर आप थोड़ी भी लिबर्टी ले लेते हो एक्सपीरियंस करने की, कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस कि यार आई डोंट फील स्कैर्ड, मुझे नहीं डरना है, मैं अपने हिसाब से चलूंगी, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉस्ट है दैट यू हैव टू पे। Yeah. It's like a tax on you being a woman born in this country. And I'm happy to see the ray of hope in your story, because girls like you और जो लड़कियां उस बदलाव के लिए कोशिश कर रही हैं और एक इंडिविजुअल स्टैंड ले रही हैं, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है मुझे उम्मीद है that things will shift. Vanika, one of the things that I have seen you talking often about is relationships, love, प्यार. तो define for me love as you understand it. कोई डेफिनेशन ही नहीं है, पता है. इट्स जस्ट अ फीलिंग जो आती है अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग तरीकों से. जैसे बचपन में जिस तरीके से यू एक्सपीरियंस लव वाज वेरी डिफरेंट देन दैट टीनेज love that you experience. Butterflies. The butterflies. And currently that I'm feeling, the kind of love is very different. अभी जो मेरा प्यार है वो सिर्फ और सिर्फ अभी it's all directed towards me. Because I think it starts with seeking outside. बचपन में फैमिली से, फिर बड़े होके अपने आसपास वाले लोगों से, दोस्तों से, फिर उसके बाद रोमांटिक पार्टनर्स से, और अभी जब फाइनली जब तुम्हें धोखा मिल जाता है लाइफ में. Well, have you had a romantic partner? Yes, I did one. और काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटिक था वो, बट थैंकफुली इनिशियली मुझे लगा कि भाई यही है जो है और इसी के साथ होने वाला है चीज़ें. But I realized that he was cheating on me for the entire time that I was dating him. How long were you dating him for? I think 1.5 2 years, मुझे याद भी नहीं है, और सच बताऊँ तो याद करना भी नहीं चाहती, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जिनकी गिनती ना करो तो बेटर होता है. तो बट फ्रॉम डे 1 टू डे एंड it was the same thing, and I felt very betrayed. I felt extremely I just felt like I wasn't lovable. I just felt that there was something wrong with me, that somebody was able to do that to me. I felt maybe it was because of my lies, but I realized that I have been the most honest in this relationship. और इस बार जब मैंने झूठ नहीं बोला तो किसी और ने मुझसे झूठ बोल दिया. And how it's maybe karma hitting me back. So it was a lot of overthinking. That is your coping mechanism now with that trauma, that okay, maybe it was karma, let me just move past it now. नहीं, मेरे को नहीं लगता वो कर्मा था. कर्मा उसी मोमेंट में होता है और उसी मोमेंट में ख़त्म हो जाता है, मेरा ये मानना है पर्सनली. मुझे ऐसा लगता है कि हर पल वी आर क्रिएटिंग समथिंग एंड वी आर गेटिंग पेड फॉर इट. सो इट वॉज नॉट कर्मा डेफिनेटली. It was something that was related to my experiences in the past and his experiences in the past. And but have you forgiven him for that experience? No. No, I have. I think he's the most beautiful person, and I wish him all the luck and beautiful things in his life. I just want him to stay out of my life now. That's a beautiful way to look at it. Yeah. But tell me, what are your top 3 learnings from a failed relationship? मुझे ये समझ आ गया कि तब तक दिक्कतें होती हैं जब तक हमारे अंदर दिक्कतें हैं. सो आई थिंक वॉट आई शेयर्ड विद हिम ट्रिगर्ड माई हीलिंग प्रोसेस, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम फॉर दैट. अगर वो नहीं होता ना तो ये नहीं होता. और फर्स्ट इज़ कि सब कुछ ख़राब ना सब कुछ सही होने के लिए होता है. If you're feeling like everything has gone wrong in your life, it means that now everything is going to start falling in place for you. And it did wonders for me. I don't think I would have enjoyed my company so much. I would have looked at myself this way if it wasn't for me falling in love. बचपन में ही हमें बोल दिया जाता है कि रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, बॉयफ्रेंड्स नहीं होने चाहिए, ये प्यार में मत पढ़ो. बट मुझे लगता है कि पढ़ने दो यार. दिस इज़ फॉर पेरेंट्स. पढ़ने दो यार, क्योंकि ये हमें अपने बारे में और ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ सिखाता है. Falling in love, creating an independent romantic relationship on your own, whether it's 17 years old or 20 years old, हम जानते हैं कि आप हमें बचाना चाहते हो इस हर्ट से, लेकिन ये भी याद रखो कि अगर हम हर्ट होंगे तो हम सीखेंगे उस हर्ट से डील करना. और सबसे खूबसूरत इंसान तो वही होता है ना जिसको वो चोटें लगी होती हैं.
हमारे पेरेंट्स ना हमें बचाने की कोशिश करते हैं, दे वांट टू प्रोटेक्ट अस एंड दैट इज व्हाई दे टेल अस कॉन्स्टेंटली कि प्यार में मत पड़ो, ये लड़का लड़की में कुछ नहीं रखा है, ये रोमांटिक रिलेशनशिप्स है जस्ट अ फ्लॉट कॉन्सेप्ट. बट यार ये हमारी ज़िंदगी है, इसमें हमें खुद गिरना ज़रूरी है. अगर चलो मान लिया एक रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं गए तो हम फ्रेंडशिप्स में धोखा खा लेंगे, हम करियर में धोखा खा लेंगे, धोखा तो हम खाएंगे. तो आई फील कि मैंने उस चीज़ से बहुत सीखा और उस इंसान ने मुझे ये भी सिखाया कि हमेशा चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, कुछ गलती उसकी थी, कुछ मेरी भी थी, और कोई भी पूरी तरीके से सही या गलत नहीं होता. एंड आई फेल्ट दैट उस रिलेशनशिप ने मुझे अपना हर फेल्ड रिलेशनशिप दिखाया जो मेरी लाइफ में था. और बहुत सारी रिलेशनशिप से मैंने, बिकॉज दिस रिलेशनशिप आई डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू, बट जैसे मेरा मम्मी के साथ रिलेशनशिप था, पापा के साथ रिलेशनशिप था, ये सारी चीज़ें मुझे अब आई वांटेड टू मेक इट राइट. पहले ऐसा था कि चलने दो जैसा चल रहा है, अब आई वांटेड टू मेक इट राइट. आई वांटेड टू फिगर थिंग्स आउट. एंड थर्डली आई अंडरस्टूड माई सेल्फ. मतलब सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ख़राब हूँ, मेरे में कुछ कमी है. बट देन इट वॉज अ जर्नी टू एक्सेप्ट माई ओन सेल्फ. सबसे पहले मैंने वो चीज़ें खुद के बारे में सीखी जो मुझे पता ही नहीं थी कि यार मैं स्टार हूँ यार, मैं बेस्ट हूँ, और ये मुझे पता ही नहीं था. You started loving yourself. Exactly, and it was because someone robbed that love out of me. अगर मुझसे कोई अनकंडीशनली प्यार करता ना हमेशा, तो मैं ये चीज़ें सीख ही नहीं पाती. एंड दिस पर्सन, दिस हेवनली पर्सन जिसको शायद भगवान ने भेजा था मेरी ज़िंदगी में मुझसे धोखा करने के लिए, उस इंसान ने मुझे ये सब सिखाया है. एंड आई होप ही हील्स, क्योंकि मुझे ये भी पता है दैट ही इज़ ऑल्सो एक्टिंग आउट ऑफ हिज ट्रॉमा. Yeah, no, I think all of us, most of us at least, are good human beings. हम लोग हमारा जो फाइबर है ना, बेसिक फाइबर, वो evil नहीं है. हम ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो बहुत evil हो सकती है किसी और के लिए, हमारे हाथों से हो जाती है, हमारे थ्रू हो जाती है. लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई सुबह उठता है ये मिशन बना के कि मुझे लोगों की ज़िंदगी ना आज नर्क बनानी है. आई थिंक ऐसे बहुत कम लोग हैं. कुछ ऐसे भी लोग होंगे बट वो परसेंटेज ना बहुत छोटा है. और हम जब ट्रॉमास में होते हैं ना, हमें हर एक इंसान वैसा लगता है. तो that is not how the other people are. It is more about how you are. You are from inside so broken that you see everybody as broken, and everybody is there to just snatch some opportunities from you, or just take away something from you. और मुझे लगता है कि failed relationship से एक जो सबसे बड़ी learning जो मैंने सीखी है वानिका, वो ये है कि एक failed relationship में blame करना और दूसरे की गलती निकालना बहुत ही आसान है. Obviously, तभी तो आपने relationship खत्म किया ना, because the other person was not working out for you in the way you wanted the relationship or that person to work out for you. So सिर्फ constantly blame करते रहना, उसने ही कर दिया, उसने cheat कर लिया, उसने ये चीज़ कह दी या इस तरह से कर दी या उसकी ये आदतें हैं. ब्लेम करना बहुत आसान है, लेकिन उस फिंगर को अपनी तरफ पॉइंट करके अगर आप वो कर पाओ, वो करेज रख पाओ और देख पाओ कि आपके अंदर क्या क्या कमी है और आपके अंदर कहाँ कहाँ स्कोप है जहाँ पे आप यू कैन बिकम अ बेटर पर्सन. वेयर इज इट दैट यू आर नॉट एज काइंड, कंपैशनेट, नाइस, जस्ट फॉरगिविंग, एक्सेप्टिंग ऑफ द अदर पर्सन. तो आपकी सिर्फ वो एक रिलेशनशिप ही नहीं, बहुत सारी और रिलेशनशिप्स लाइफ में बेटर हो जाती है. सो आई थिंक जैसा आपने कहा ना कि जो सबसे चीज़ें जब ख़राब हो जाती है, व्हेन एवरीथिंग ब्रेक्स डाउन फॉर यू, वहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें होना शुरू होती है. दैट इज़ समथिंग आई जस्ट सो बिलीव इन, एंड इट इज़ जस्ट सच अ पावरफुल फीलिंग इफ़ यू कैन फील सो, इफ़ यू कैन मेक फ्रेंड्स विद रॉक बॉटम्स. एंड आई हैव अ होल थियोरी अबाउट इट, मेकिंग फ्रेंड्स विद रॉक बॉटम. जब सब कुछ टूटने लगे ना, जब ऐसा लगे कि अब बिल्कुल ही मतलब समुद्र के वो बेस को टच कर लिया है हमने, हम बिल्कुल नीचे आ गए, तो आई थिंक it can be an extremely empowering experience, because वहाँ से even if आप इतने हाथ भी हिलाओगे ना, आप 1 इंच तो ऊपर आओगे, थोड़ा सा एफर्ट भी करोगे 2 इंच तो ऊपर आओगे, धीरे धीरे करके you will come above. लेकिन जब आप एक रॉक बॉटम हिट करते हो ना, it is for sure that you can't go any lower than that. Then only way is up. Sometimes it could take time, sometimes it could take more work, but the way is up. That is a guarantee. I think rock bottoms come with this beautiful guarantee that it's going to get better from here. And that is something that I just absolutely love about rock bottoms. हमारी पूरी जिंदगी we are conditioned to hate rock bottoms. कुछ भी हो जाए फर्स्ट आना है या लोअर रैंक नहीं आना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए. हमको फेलियर से इतना डराया जाता है कि हमें लगता है ये तो बहुत ही गलत पोजिशन है. अगर हम फेल हो जाते हैं कहीं भी लाइफ में तो वी स्टार्ट जजिंग एंड हेटिंग आवरसेल्व्स सो मच. बट इफ वी कैन जस्ट मेक फ्रेंड्स विद दैट फेलियर, ओ माय गॉड, द काइंड ऑफ लर्निंग्स एंड द काइंड ऑफ
triumphant experience that we can have from that place is just beautiful. So Monica, you had your learnings out of this failed relationship. So you are still a 22-year-old young girl. Life is full of possibilities for you. What is it that you are now seeking out in your partner, if at all you're seeking out for a relationship? Are you seeking out for one firstly? तो आई फील कि सीख नहीं कर रही मैं, बट आई वुड ऑल्सो नॉट क्लोज डोर्स टू समवन. अब बॉयफ्रेंड नहीं होगा, अच्छा. अब पार्टनर होगा. लाइक somebody who can give me respect, somebody who can understand my being, somebody who is a friend first, and somebody who is like a person that I would want to just share things that I'm going through in my life. I have learned how to be with myself, but I still look for a friend, है ना. मेल फीमेल ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है. बिकॉज आई फील that strong connection, that strong relationship I have not shared as of now. I don't have in my life as of now With anybody? with anybody. कि मैं यार ये इंसान है ना, जिसको मैं सब बता रही हूँ. ये इंसान है जिसके साथ मैं सब शेयर कर रही हूँ. ये इंसान है जिसके साथ मैं इधर जाना चाहूँ, उधर जाना चाहूँ. I've started doing everything alone in my life that I would also want to maybe share my life, because I think it's beautiful when shared. I think companionship in general is a Exactly. beautiful experience to have. Yeah, And to have a companion is beautiful. exactly. And I'm not saying just love in your life. बहुत अच्छी हाँ. बात है अगर आपके lover में आपको companion मिलता है. और अगर any kind of हाँ. any kind of companionship. So instead of calling it a lover or a boyfriend or a partner, Exactly. just a good companion Just a with good whom companion. you feel just nice हाँ, about that life. is what I want. That is what I want. मतलब even if it's a family member, that would also work. कोई भी यार, कोई भी. I would want my life to be shared in a positive, in a way that I can grow, because I've done things alone and I'm enjoying it. But I think I would also want to try that. You would want to share Yeah, those exactly. experiences. And it's very human for us to feel the need for having a companion in life. क्योंकि हम तो social animals ही हैं, है ना. तो हमें तो वो चाहिए Yeah. एक comfort, a hug at the end of the day, a Yeah. comfortable conversation at the end of the day, somebody you can walk up to and say and just Yeah. bare yourself and say your own truth and stuff like that. और पता है ज़रूरी है कि ये एक एक्चुअली ह्यूमन बीइंग हो. जैसे कई लोग बुक्स को अपना दोस्त बना देते हैं, कई लोग बोलते हैं भगवान है हमारे साथ. हाँ, Pets भगवान हैं, पेट्स हैं, बुक्स हैं, सब है ना. हमारे टीचर्स हैं, हमारे मेंटर्स हैं, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग जिससे आप एक्चुअली बात कर सको, जो आपको अपना ओपिनियन भी बता सके, जो आपकी लाइक टीयर्स को वाइप कर सके, इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. True. एंड इट्स ओके इफ आई गेट इट. लाइक आई एम नॉट saying कि जबरदस्ती ही है, मिल ही जाए. But yeah, I would want Like that. I said, life is full of possibilities. Anything can happen Yeah, maybe इधर anytime. कोई देख रहा है इस पॉडकास्ट को, guys. Yeah. Stranger things have happened. You can truly wish for it. मैं तो उसको बुलाती मैनिफेस्टेशन काउच हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने मैनिफेस्ट की है और Yeah. बहुत सारे कुछ गेस्ट अच्छा, ने भी तो फिर मैं मैनिफेस्ट भी की है. बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर देती हूँ. मुझे एक बहुत बड़ा स्टार बनना है. आई वांट टू बी माय ओन बिगेस्ट फैन. मुझे सबसे बड़ा फैन खुद का बनना है. मतलब मुझे बहुत सारी कहानियां सुनानी है, मुझे बहुत सारी चीजें करनी है. मुझे ना एक रैंडम विलेज में जाके एक मेडिकल कैंप लगाना है, मुझे टीचर बन जाना है बहुत सारे लोगों का, मुझे भी पॉडकास्ट करना है ना. मुझे You're welcome anytime. आपको पता है Yeah. सेटअप तो हमारे पास है ही. बस आ जाओ. मेरे पॉडकास्ट का नाम होगा मम्मी यार. देखो, ट्रॉमा से ही आइडियाज निकलते हैं, Correct. है ना. तो मेरे पॉडकास्ट का नाम होगा मम्मी यार, एंड आई वुड टॉक टू मॉम्स एंड आई वुड मेक देम फील लाइक इंडिविजुअल्स, एंड आई वुड वांट that generational gap to also take a side, and I would want moms to come out like girls, है ना. Like Them to live a life that they Exactly. were denied. हाँ, मेरे को सिर्फ बात करनी है उनसे. मुझे लगता है हमारी जानना है. मदर्स के शोल्डर पे ना, हमसे जो एक जनरेशन पहले वाली, हाँ. इतनी जल्दी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई ना. और माँ तो माँ होती देवी है, है, माँ भगवान होती होती है, है. भगवान होती है. हम उसको इतना पेडिस्टल पे चढ़ा देते हैं ना कि यार माँ एक इंसान भी तो है, उसको भी तो वो हाँ. चाहते हैं, ख्वाहिशें हैं. कोई नहीं पूछ रहा है. And I think शी इज these are एवरी all डे आस्किंग यू. stories. These are all stories, पता है, जो हमने बना दिए हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं. कैपिटलिज्म लगता है मुझे तो. ये माँ को भी भगवान बनाना ना, ये जो संस्कार वगैरह भी है ना, मुझे ऐसा लगता है ये एक आइडिया था जो किसी ने बेचना चाहा, एक किताब को बेचने के लिए, और ये बिक गया और अभी हमारी जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया. नहीं तो, एंड आई थिंक द बेस्ट वे टू लर्न अबाउट लाइफ इज लर्निंग थ्रू एनिमल्स. वो लोग भी पेरेंट्स होते हैं, वो लोग भी अपना बच्चों को बचाते हैं, केयर करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट दे आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स. लाइक इफ यू सी एनी एनिमल
और मैं पता नहीं ये बात क्यों बोल रही हूँ, बट इट मेक्स सेंस दैट इफ यू सी एनी एनिमल, he has that feeling for his kid and he takes care of that kid, but he is also a very strong individual and They're also very survival. detached at the same Exactly. time. And I think that is how it is supposed to be. हमारी जो society बनी है, जो चीज़ें बनी है, it's because somebody wanted to sell some idea, some story, and we bought it, and now it has become a very important part of our lives. So if Vanika could be an animal today, which animal would you like to be? यार मेरे को तो सारे एनिमल बनना है. नहीं, एक ही बनना है. एक ही बनना है. I don't think I can pick one. Sorry. I would want to experience being a cobra snake. है ना? किसको डसना है वानिका? मेरे को डसना नहीं है, पता है. मुझे किंग कोबरा बनना है और मुझे देखना है कि वो अपनी ही लोगों को कैसे कंज्यूम कर जाता है. मतलब क्या क्या होता होगा. और फ्रॉग है ना, फ्रॉग्स आर सो फैसिनेटिंग, टाइगर्स आर सो फैसिनेटिंग. सो आई एम वेरी फैसिनेटेड विद वाइल्ड लाइफ. लाइक रिसेंटली मेरा एनिमल्स की तरफ एक आई वांट टू स्टडी एनिमल्स एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज सच अ वियर्ड थिंग. आई नेवर थॉट आई वुड हैव दैट पर्सपेक्टिव, बट हाँ, मतलब आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग लाइफ थ्रू देयर लाइफ. It is so beautiful because we are also as a species animals only. Exactly. लेकिन हम बहुत condition हो रहे हैं as a race and all of that. I think अगर हम सब लोग बहुत instinctively behave कर सकें और बहुत चीज़ें ना सोचें ना, लाइफ को इतना सीरियसली ना हम लें. सब ना, मेरे को लगता है हमारा ब्रेन जो है ना, वो स्टोरीज से बना हुआ है. बहुत सारी स्टोरीज हैं जो चलती आ रही हैं, सब स्टोरीज हैं, है ना. हमें नहीं पता कि क्या सही है, क्या नहीं गलत है. These are all stories that we are believing in, and that is why I feel as a storyteller we are very powerful, because we have the ability to create. Like I was in Goa and I saw temples based on stories. These are stories जिन्होंने इतने बड़े बड़े temples बना रखे हैं, इतने सारे लोगों को, tribe को इकट्ठा कर रखा है, community बना रखी है. These are all stories, and we are modern age storytellers. Like I think if I have the power to tell a story and make a person believe in my story, I think I'm the most powerful person. Absolutely. Because I can change the entire world for myself and for the other person. आज मैं खुद को ये बता के कि मेरे झूठ के पीछे एक कहानी थी, मैं खुद को समझा सकती हूँ और खुद के बारे में बेटर फील कर सकती हूँ और उसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस अपनी लाइफ में लेकर आ सकती हूँ. और साथ ही साथ जो सुन रहा है उसको, इफ दे आर ऑल्सो लाइंग इन देयर लाइव्स, कहीं पे झूठ बोल रहे हैं, कहीं पे प्रिटेंड कर रहे हैं, तो उनको भी वो स्टोरी एक जरिया मिलती है सवाल करने का खुद से कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ यार, और अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ तो मैं कैसे बदल सकता हूँ. क्या चीज़ें लगेंगी मुझे अपने आप को बदलने में अगर मैं वैसा चाहता हूँ तो आई थिंक यू वेरी राइटली सेड दैट स्टोरीज ट्रूली हैव द पावर टू चेंज द वर्ल्ड. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स आई एम डूइंग दिस पॉडकास्ट, ब्रिंगिंग आउट नॉट जस्ट माई स्टोरीज बट ऑल्सो स्टोरीज ऑफ आवर गेस्ट, क्योंकि इतनी पावरफुल स्टोरीज हैं और इतनी ब्यूटिफुल इंडिविजुअल जर्नीज पे हम सब हैं और हम इतना कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फिर उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं और अपनी लाइफ चला रहे हैं. दैट it's just so interesting जब ये सारी stories एक साथ when they melt together and create beautiful learnings for people who are listening to these stories. What is your next passion project now? अभी ये प्लान है कि कोई प्लान नहीं है, but currently I want to focus on stage. मुझे कॉमेडी ट्राई करनी है मे बी. ओह वाओ, हाई फाइव. मुझे भी कॉमेडी ट्राई करनी है पिछले 10-12 साल से, और मैंने पता है बहुत सारी बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट्स लिख के रखी भी, बट नेवर हैड द करेज टू गो एंड परफॉर्म, क्योंकि हमेशा से ये लगा यार कहीं लोग, बिकॉज आई बिकेम एन एंकर एट अ वेरी अर्ली एज एंड आई वाज मेकिंग गुड मनी बैक देन ऑल्सो. घर की EMIs भी भरनी थी, बहुत यंग एज में आई बॉट माई फर्स्ट हाउस एंड देन द सेकेंड हाउस. तो मुझे लगा यार कहीं लोगों को लगा कि यार ये तो कुछ भी कर रही है तो मुझे कहीं काम मिलना बंद हो गया तो EMIs तो भरनी है. तो आई जस्ट लेट गो ऑफ दैट ड्रीम, बट आई स्टिल हैव दोज स्क्रिप्ट्स एंड आई हैव अदर स्क्रिप्ट्स ऑल्सो दैट आई हैव क्रिएटेड. Maybe someday. Yeah, someday. I don't know. I think I might on 19th. Do it now. Don't let any of that idea, that inquiry, that question that comes to you, just put it to good use. Just put it to use. I think I'm already doing it. Like I'm hosting events. I am doing my own storytelling show. उसमें मैं funny होने की कोशिश करती हूँ. मुझे पता है मैं funny नहीं हूँ, but I think I'll just get a hang of it because humorous हम सब होते हैं. Actually, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कॉमेडी इज ऑल्सो अ स्किल. आई हैव स्पोकन टू सो मेनी कॉमेडियंस एंड 3-4 ऑफ देम हैव कम ऑन द पॉडकास्ट सो फार एंड आई हैव आस्क्ड देम दैट इफ इट इज अ स्किल या फिर आप इनेटली ह्यूमरस होते हो, तो कॉमेडी भी ना किसी जैसे स्टेज स्पीकिंग है, पब्लिक स्पीकिंग है, स्टोरी टेलिंग है, सारे स्किल्स ही हैं. अगर हम उसके उसको ब्रेक डाउन करें और समझे कि उसमें क्या क्या नुआंसेस हैं, तो
it's कोई बेटर हो सकता है, कोई कम बेटर हो सकता है, कोई बहुत खराब भी हो सकता है, लेकिन I आई think थिंक if you're enjoying it your is art learnable. form, then it makes sense. It is learnable. Yeah. So I think I would हाँ. encourage you to do that. Because I don't want to do stand-up comedy because I want to come out as a funny person, but I would want to tell all of these stories that I'm telling in a less serious way. मुझे ये समझ आ गया कि वनिका तू बहुत इमोशनल कर देती है, अब उसी चीज़ को अगर तू हंसा के समझा दे तो और भी बेटर है. तो दैट इज द थिंग दैट आई वुड वांट टू वर्क ऑन एंड आई वुड वांट टू अचीव. और इसके साथ साथ मुझे थिएटर करना है. मुझे आई थिंक राइट नाउ आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन डिफरेंट स्टेज आर्ट फॉर्म्स लाइक थिएटर, लाइक कॉमेडी, और इन सब चीज़ों से मुझे चीज़ें करनी है. बट मुझे नहीं पता मैं कल क्या कहूँगी. मैं कल ना इंटायरली डिफरेंट चीज़ भी कह सकती हूँ आपको. तो कोई वो सेट फॉर्मेट नहीं है. बट हाँ, एक चीज़ जो सेट है मेरी लाइफ में वो ये है कि अगर मेरा दिल कुछ करने को कहेगा तो मैं करूँगी, और मैं पूरे दिल से करूँगी उसे तब तक जब तक वो कर पाऊँगी मैं. और उसके बाद आई वॉन्ट माई लाइफ टू बी फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस. आई वुड वॉन्ट टू डू डिफरेंट थिंग्स इन माई लाइफ. आई डोंट वॉन्ट टू लिव अ लाइफ इन विच आई एम डूइंग अ 9 to 5 जॉब और आई एम बिकमिंग लाइक अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, फोर्ब्स 30. मेरे को बहुत पैसा भी नहीं कमाना, मुझे अच्छा पैसा कमाना है जिससे मैं अपने सारी ख्वाहिशें पूरे कर सकूँ. दिस इज़ व्हाट आई एम मैनिफेस्टिंग. और बट हाँ, मुझे ऐसा है कि आई वुड, बिकॉज आई एम अ स्टोरी टेलर, मेरी सबसे ज़्यादा अर्निंग तो स्टोरीज ही है ना. तो मुझे ऐसी लाइफ जीनी है जिसमें मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ बताने को, और मुझे अपनी कहानियाँ बतानी है. और आप वो कहानियाँ इकट्ठा कर रहे हो अभी, क्योंकि आप इतने हाँ. डिफरेंट एक्सपीरियंसेस में खुद को डाल रहे हो. सो यू आर गोइंग ऑन टू अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, द जर्नी विद इन. वो जर्नी वापस जो आपको अपने अंदर लेके आती है, और अंदर फिर कुछ होता है और फिर आप कुछ और डिस्कवर करते हो अपने बारे में, एंड देन यू गो ऑन टू अनदर क्वेस्ट Yes. कि चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी टिकल कर रहा है, ये करके देखते हैं. आई थिंक हाँ. इट्स अ ग्रेट स्पेस टू बी इन. और बहुत कम लोग होते हैं जिनमें ये करेज होता है. थैंकफुली दिस जनरेशन, आवर जनरेशन, यू आर मच यंगर देन मी, योर जनरेशन हैज़ इवन मोर करेज to just do things that their heart desires, which is a great space to be in. और तभी मुझे लगता है बहुत सारी नए नए आइडियाज़ हो रहे हैं. बहुत सारे we are seeing 16-year-old CEOs, we are seeing people having these crazy experience curation companies, travel companies, so many different things people are trying and doing, not just because they want to be successful in that and make a lot of money, just because they want to soak themselves into the experience of doing what they want to do, which is just a great place. Vanika, to people who are your age or probably younger, who are trying to understand कि क्या करना है लाइफ में, आगे क्या नेक्स्ट मूव है मेरे लिए करियर वाइज, व्हाट इज योर एडवाइस टू देम? दोस्त, सबसे अच्छा गाइड जो हमारी लाइफ में हमारा होता है ना, वो हमारा दिल होता है. वो हमारा दिस इंट्यूशन जिससे हमें पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. And it is very important that you listen to that even if you feel like it's not the most rational decision to take. करो यार. अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम अपने मम्मी पापा को इतना बर्डन नहीं करना चाहते हो, तो ये याद रखो कि तुम्हारे मम्मी पापा ने इसलिए स्ट्रगल किया था उनके टाइम पे ताकि तुम आज अपने ख्वाब पूरे कर सको. अगर उनकी स्ट्रगल तुम अपने उनसे ही लोगे तो फ़र्क क्या होगा ना. उनकी स्ट्रगल तो इसलिए थी ना ताकि तुम एक बेटर लाइफ जी सको. तो don't take that burden that you want to be, you don't want, like, stop wanting to not disagree with your parents. It's okay if they don't approve of what you are doing. Do what you want to. Challenge the status quo हाँ. if that is something that you want. Exactly. अपने सबसे पहले मुझे लगता है कि मेरे उम्र के लोगों को सबसे दिक्कत यही आती है कि उनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट नहीं करती. मम्मी पापा को क्या बोलेंगे, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया. दोस्त, वो भी यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो. तो इनिशियली दे माइट डिसएग्री, बट इवेंचुअली दे आर गोइंग टू बी हैप्पी इन योर हैप्पीनेस. सो टेक दैट करेज, टेक दैट फर्स्ट स्टेप, क्योंकि वो भी ये देखना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है कि नहीं कि उन्हें लड़ने की. क्योंकि अगर तुम उन्हें ही नहीं लड़ पाओगे तो तुम दुनिया कैसे लड़ोगे. So tell me the first 3 steps that one should take सबसे to पहले start on their own. Start on their own. First is don't be scared. Do everything that you want to do. And then start figuring out what you don't want to do. And third, finally, find out what exactly is it that you always have the energy to do. मतलब तुम चाहे अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है. अगर तुम्हारे पास किसी चीज़ को करने की एनर्जी है, then that is the thing for you.
Energy is the most important thing. You might be good at medicines and mathematics, but if you don't have the energy to do it, then don't do it. If you have the energy to sing, but you're not a good singer right now, then sing till you become can a become better better. singer. That's a very powerful message and a very powerful insight to look at your life from. Vanika, you have spoken about your childhood trauma, you've spoken about healing and the whole journey and the process that you have been through. So, what would be your top 3 ways or ideas or keys for improving one's mental and emotional health? So I recently posted about it on my Instagram कि किसी भी कैद से आज़ाद होने के लिए 3 चाबियाँ लगती हैं. किसी भी कैद से, whether it's your family का कैद या फिर दुनिया का कैद या फिर खुद का कैद, Emotions. emotional कैद. First is sabr, which is patience. Understand with patience what you feel, how you feel it, and why is it that you feel it. Stop blaming yourself. Stop judging yourself. Understand yourself instead. So sabr मतलब patience रखो खुद के साथ. Then second, shukr, which is gratefulness. कि यार I am in this space and there is a positive aspect to look at it as well. कि हाँ वो trauma था लेकिन उसने मुझे कितना बेहतर इंसान बनाया. Just be grateful for everything that has happened to you. And third is tawakkul, which is an Urdu word which means faith in God's plan. या फिर if you don't believe in God, then faith in the universe's plan for you. So that idea of patience, gratefulness and faith, इन तीनों का कॉम्बो ना आपको खुद के और करीब ले आएगा. ब्यूटीफुल. वो कहते हैं ना, मन का हो तो बहुत अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा. तो आई थिंक उसका सीधा साधा मतलब यही है कि जब आपके मन की नहीं होती है, दुख तो होता है लेकिन कुछ और बेटर प्लान आपके लिए एक यूनिवर्स ने, एक भगवान ने, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं. मतलब हम देखा जाए तो हम सब खुद नहीं कर रहे ना, हो रहा है हमारे साथ भी चीजें हो रही हैं. इट्स बिकॉज there is something that is happening bigger than you that has a power to move things around energy, you. Whatever you identify to that higher power as God, energy, universe, कोई whatever भी. name you may give it to. But there is a higher power which is bigger than you, much bigger than you, that is moving around things for you and that is making things happen for you. तभी तो कोई चीज़ हमारे साथ एक्सपीरियंस होती है ना, तो एकदम एक्सटैटिक वाली फीलिंग आ जाती है कि यार मज़ा आ गया लाइफ में. वो आप खुद नहीं कॉज कर रहे हो अपने लिए, है ना. कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आप खुद क्रिएट करते हो लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है हमारे आसपास जो हमारे लिए कॉन्स्टेंटली क्रिएट हो रही होती है. एंड इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू डोंट गिव अप योर एंटायर लाइफ एंड योर एंटायर डूइंग्स ऑन दैट एनर्जी एज वेल. मेरा ये मानना है कि हमारी तकदीर की लकीरें होती हैं और कुछ लोग कहते हैं कि अगर मेहनत करें तो हम उन लकीरों को बदल सकते हैं, पर मैं कहती हूँ कि शायद हम उन लकीरों को नहीं बदल सकते क्योंकि वो एक बड़ा प्लान है जिसका हम पार्ट है. बट उन लकीरों से ही हमारी कहानी को, जो हम समझते हैं खुद की कहानी, हम उसको ज़रूर बदल सकते हैं. वो चीज़ें जो हम नहीं बदल सकते हम कभी बदल ही नहीं पाएंगे, लेकिन उनको, उनकी तरफ हमारा नज़रिया बदल कर, उनको समझ कर, उनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर हम जो फील कर रहे हैं या फिर जो उसका इम्पैक्ट हो रहा है हमारी लाइफ में, हम उसको बहुत स्ट्रांगली बदल सकते हैं. वानिका, मैं ये बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि आपकी ज़िंदगी वो नहीं होती है या आपकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस वो नहीं होता जो आपके साथ हो रहा होता है. आपकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस वो होता है जो आप उसे महसूस कर रहे होते हो, फील कर रहे होते हो, देख रहे होते हो. तो आपका अपना नज़रिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है वो सिर्फ वो नहीं होता जो आपके साथ हो रहा है. ऐसा नहीं होता कि आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा तो आपका एक्सपीरियंस उस चीज़ का बहुत बढ़िया हो. ज़रूरी नहीं है. आपके पास बहुत सारा पैसा हो सकता है, फेम हो सकता है, पावर हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि आप खुश हों. तो आपका जो एक्सपीरियंस लाइफ का वो होता है जो आप उसको जिस तरह से प्रोसेस करते हो, फील करते हो. और ये जो फीलिंग है ना, ये आपका अपना नज़रिया है अपनी ज़िंदगी के लिए. तो कुछ ज़िंदगी शायद एक्सपीरियंसेस के थ्रू हम जीते हैं और बहुत सारी ज़िंदगी नज़रिए के थ्रू. तो व्हेन वी कैन चेंज दैट नज़रिया अबाउट आवरसेल्व्स, अबाउट अदर्स, आई थिंक द वर्ल्ड विल स्टार्ट लुकिंग एज अ बेटर प्लेस टू बी इन. Thank you so much, Vanika, for coming over to the podcast and sharing your beautiful story, journey with me and empowering me also along this conversation. I am so happy. Thank you so much for having me here. And it was a conversation that I've not had with anyone except myself. So it was great talking to you. And you have such a vibrant energy. मुझे बहुत मजा आया, genuinely. Thank you so much, Vanika. For me, the success of my podcast lies into having, one,
authentic conversations, completely, filterless conversations. And second, when my guest enjoys the conversation, I I think enjoy it. we've done a And good this is my job. manifestation couch. एक दिन मैं बहुत बड़ी स्टार बनूंगी and I'll refer to this podcast. Please do that. This is the first platform where you've spoken about these conversations. Yeah. But thank you so much once again Thank for you. coming. Wishing you Thank more you and so more much. love, luck, success, and everything that you're manifesting here today. I really hope it comes true Yeah. for you Dua for as you. soon. Hi everyone, hello, I'm Vanika and you heard me on the Journey Within podcast with Shobha Rana. अगर आपको मेरी कहानी और हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी लगी हो, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, आई फील दैट आई हैव टॉक्ड इतना ओपन होके बहुत टाइम बाद, अगर आपको लगा कि हम आपकी कहानी के बारे में भी बात कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करो और हमें बताओ कि आपको कैसा लगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करोगे ही आप. सो या, दैट इज़ इट.